السلام علیکم۔ پل نیوز کے نیوز اسٹوڈیو سے میں ہوں اسامہ حیدر۔ بلیٹن کا آغاز کریں اور آغاز میں آپ کو بتائیں کہ پاکستان اور ایران کے درمیان تناؤ کی صورتحال کے بعد مثبت پیغامات کا تبادلہ ہوا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے پاکستان اور ایران کے درمیان مثبت پیغامات کے تبادلے کی تصدیق کی ہے۔ پاکستان کے ایڈیشنل سیکرٹری خارجہ رحیم حیات قریشی نے ایرانی ہم منصب سید رسول موسوی کو جواب دیا ہے کہ آپ کے جذبات کا جواب دیتا ہوں پیارے بھائی رسول موسوی۔ ایڈیشنل سیکرٹری خارجہ نے ایرانی سفارتکار سے کہا ہے کہ پاکستان اور ایران کے برادرانہ تعلقات ہیں، مثبت بات چیت کے ذریعے تمام مسائل کو حل کرنے کے لیے آگے بڑھیں گے۔ دہشت گردی سمیت ہمارے مشترکہ چیلنجز کے لیے مرطوب کارروائیوں کی ضرورت ہے۔ ایرانی سفارتکار نے کہا ہے کہ دونوں ممالک کے رہنما اور اعلیٰ حکام جانتے ہیں کہ حالیہ تناؤ کا فائدہ دشمنوں اور دہشت گردوں کو ہوگا۔ لاہور سے قومی اور صوبائی اسمبلی کی 44 نشستوں پر عام انتخابات 2024 کے امیدواروں کی حتمی فہرستیں جاری کر دی گئی ہیں۔ الیکشن کمیشن نے الیکشن ٹریبیونل کے فیصلے کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں دائر درخواستوں کے فیصلے کے بعد فہرستیں جاری کر دی ہیں، جس کے مطابق لاہور سے قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی 44 نشستوں پر 1079 امیدوار مد مقابل ہوں گے۔ جاری فہرستوں کے مطابق لاہور کی قومی اسمبلی کی 14 نشستوں پر 266 امیدوار مد مقابل ہوں گے، جبکہ صوبائی اسمبلیوں کی 30 نشستوں پر 813 امیدوار اپنی قسمت آزمائیں گے۔ قومی اسمبلی کے حلقہ این اے 120 میں سب سے زیادہ 27 امیدوار اور حلقہ این اے 118 میں سب سے کم 18 امیدوار مد مقابل ہوں گے۔ صوبائی اسمبلی کی نشست پی پی 161 پر سب سے زیادہ 46 امیدوار اور صوبائی اسمبلی کی نشست پی پی 150 سے سب سے کم 13 امیدوار مد مقابل ہوں گے۔ آپ کو بتائیں کہ وفاقی حکومت نے عمران خان کے خلاف جیل میں سائفر ٹرائل کالعدم قرار دینے کا اسلام آباد کا ہائی کورٹ کا فیصلہ چیلنج کر دیا ہے۔ وفاقی حکومت نے بانی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے خلاف جیل میں سائفر ٹرائل کالعدم قرار دینے کا اسلام آباد کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کیا ہے۔ وفاقی حکومت کی جانب سے دائر درخواست میں کہا گیا ہے کہ ہائی کورٹ نے سائفر ٹرائل کے لیے قائم خصوصی عدالت کو کالعدم قرار دیا ہے۔ ہائی کورٹ کے پاس خصوصی عدالت کی حیثیت ختم کرنے کا اختیار نہیں ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے حقائق کا درست جائزہ نہیں لیا۔ درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا 21 نومبر 2023 کا فیصلہ کالعدم قرار دیا جائے۔ ادھر پنجاب اور ملک کے دیگر علاقوں میں شدید دھند برقرار ہے، جس کی وجہ سے آج بھی 12 ملکی اور غیر ملکی پروازیں منسوخ کر دی گئی ہیں۔ ایوییشن ذرائع کے مطابق منازل پر حد نگاہ انتہائی کم ہونے کی وجہ سے 6 پروازوں کو متبادل ایئرپورٹس پر منتقل کر دیا گیا ہے، جبکہ جمعرات کو بھی لاہور، اسلام آباد، کراچی اور پشاور کی 37 پروازیں منسوخ کی گئی ہیں۔ ایوییشن ذرائع نے بتایا ہے کہ جدہ سے لاہور کے لیے نجی ایئر لائن کی پرواز کو فضا میں 1 گھنٹہ انتظار کے بعد کراچی میں لینڈ کروایا گیا۔ دبئی سے ملتان، دمام اور کویت سٹی سے سیالکوٹ کی پروازوں کو اسلام آباد اتارا گیا، جبکہ بحرین اور کراچی سے لاہور کے لیے 2 پروازوں کو بھی اسلام آباد منتقل کیا گیا۔ اس کے علاوہ لاہور کراچی پی آئی اے کی 2 پروازیں منسوخ کر دی گئی ہیں۔ سعودی عرب ایئر لائن کی جدہ سے لاہور کے لیے پرواز، اسلام آباد کی کراچی سے نجی ایئر لائن کی 2 اور شارجہ کی 1 پرواز منسوخ کی گئی ہے۔ ملتان سے جدہ کے لیے نجی ایئر لائن کی 2، کراچی سے دمام اور گوادر کی 3 پروازیں منسوخ کی گئی ہیں۔ ملک بھر میں شدید سردی کی لہر برقرار ہے اور دھند کی وجہ سے موٹر ویز بند کر دی گئی ہیں۔ لاہور میں دھند کا راج قائم ہے، جس کے بعد حد نگاہ انتہائی کم ہو کر رہ چکی ہے۔ دھند کے سبب موٹر وے M3 فیض پور سے رجانہ تک اور موٹر وے M5 شیر شاہ سے ظاہر پیر تک بند ہے، جبکہ لاہور سیالکوٹ موٹر وے M11 بھی بند ہے۔ ادھر لودھرا میں بھی حد نگاہ انتہائی کم ہو چکی ہے۔ قومی شاہراہوں پر ٹریفک سست روی کا شکار ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں کراچی دوسرے اور لاہور 5ویں نمبر پر براجمان ہے۔
लाहौर में स्मोग और खुश्क सर्दी के सबब नमूनिया कैंसर्स में इजाफा होने लगा है, जबकि गुज़श्ता 30 दिनों के दौरान 42 बच्चे नमूनिया के बायस इंतकाल कर चुके हैं। महकमा सेहत पंजाब के मुताबिक सूबे भर में स्मोग और खुश्क सर्दी की ख़राब सूरत हाल के बायस नमूनिया, चेस्ट इन्फेक्शन और वायरल इन्फेक्शन के सैकड़ों बच्चे ज़ेरे इलाज हैं। सूबाई महकमा सेहत का कहना है कि गुज़श्ता 30 दिन के दौरान सिर्फ लाहौर में 1474 बच्चे नमूनिया में मुब्तला हुए हैं। इन बच्चों की उम्र 5 साल से कम बताई जा रही है। महकमा सेहत के मुताबिक लाहौर के मुख्तलिफ हस्पतालों में ज़ेरे इलाज नमूनिया में मुब्तला होने वाले इन बच्चों में से 42 बच्चे इंतकाल कर गए हैं। बात करें खुशाब की तो आपको बताएं कि खुशाब में शादी का झांसा देकर लूटने वाली मुलजिमा गिरोह समेत गिरफ्तार कर ली गई हैं। गिरफ्तार मुलजिमान से माल मसरूका भी बरामद कर लिया गया है। मुलजिमा अब तक 100 से ज़ायद अफराद को लूट चुकी है। पुलिस के मुताबिक खुशाब के इलाके कायदाबाद से शादी का झांसा देकर लोगों को लूटने वाले मुलजिमा को दुल्हन के रूप में गिरफ्तार किया गया है। मुलजिमा नसरीन उर्फ माधुरी पिछले 8 से बंदों से शादी कर चुकी है और 100 से ज़ायद अफराद को लूट चुकी है। मुलजिमा को इसके अलावा समेत दीगर मुतअद्दिद लोग भी इनके हमरा पाए गए हैं। यहाँ पर आपको अफसोसनाक खबर से आगाह करते चलें, आपको बताएं कि बाजोड़ में पोलियो ड्यूटी पर मामूर डॉक्टर अब्दुर्रहमान की गाड़ी पर फायरिंग से डॉक्टर और ड्राइवर ज़ख्मी हो गए हैं। डिप्टी कमिश्नर बाजोड़ के मुताबिक डॉक्टर अब्दुर्रहमान फायरिंग से शदीद ज़ख्मी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल के लिए मुंतकिल कर दिया गया है। इस हवाले से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का डिप्टी कमिश्नर बाजोड़ से टेलीफोनिक रब्ता भी हुआ है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने चीफ सेक्रेटरी को ज़ख्मी डॉक्टर को पेशावर मुंतकिल करने के लिए हेलीकॉप्टर फराहम करने की भी हिदायत जारी की है। आपको बताएं कि कराची में इंटर साल अव्वल के नताइज में बड़ी तादाद में तुलबा के फेल होने के मामले पर तुलबा और वालदैन के एहतजाज पर महकमा तालीम ने कमेटी बना दी है। इस हवाले से जारी होने वाले नोटिफिकेशन के मुताबिक महकमा तालीम की कमेटी में रीजनल डायरेक्टर कॉलेजेस और एडिशनल सेक्रेटरी और दीगर शामिल हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक कमेटी 7 रोज़ में महकमा तालीम को अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। इससे कबल मंगल को इंटर बोर्ड कराची के तहत साल अव्वल के नताइज के खिलाफ तुलबा की बड़ी तादाद ने कराची प्रेस क्लब पर एहतजाजी मुजाहरा भी किया था। मुजाहिरीन का कहना है कि इनके साथ नाइंसाफ़ी की गई है और इन्हें फेल कर दिया गया है या इंतहाई कम नंबर दिए गए हैं, जिसकी वजह से इनका मुस्तकबिल तबाह होकर रह चुका है। मुजाहिरीन का कहना है कि कराची बोर्ड के नताइज 35% हैं, जबकि बाकी बोर्ड्स के नताइज का तनासुब दुगना बताया गया है। कमिश्नर साहिवाल शुएब इकबाल सैयद का उकाड़ा में जारी तरक्याती कामों का विजिट, जिसमें डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर ज़ीशान हनीफ भी साथ मौजूद हैं। मजीद बता रहे हैं मलिक इरशाद अपने इस रिपोर्ट में। कमिश्नर साहिवाल डिवीजन शुएब इकबाल सैयद का उकाड़ा में जारी तरक्याती कामों का विजिट। कमिश्नर साहिवाल डिवीजन का कहना था कि तरक्याती काम अवाम की मेयारी जिंदगी को बुलंद करने के लिए बुनियादी हैसियत के हामिल है। इनकी तकमील के दौरान तमाम तकनीकी अमूर का ख्याल रखते हुए क्वालिटी मटीरियल के इस्तेमाल से देर पा तरक्याती स्कीम अवाम को मुहैया की जा सकती है। ये बातें उन्होंने वर्ल्ड बैंक और सेफ सिटीज के तावन से MA जिनाह रोड और जिनाह क्रिकेट स्टेडियम में जारी तरक्याती कामों का जायजा लेते हुए की। इस मौका पर उनके हमरा डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद ज़ीशान हनीफ, COMC उमर नसीम, मुतलका अदारों के अफसरान भी मौजूद थे। कमिश्नर साहिवाल डिवीजन शुएब इकबाल सैयद ने हिदायत जारी करते हुए कहा कि अवामी आमदोरफ्त के इस बेहतरीन मंसूबे को जल्द पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए आला मटीरियल इस्तेमाल किया जाए और रोड की तज़ीनो आराइश के अमूर भी सर अंजाम दिए जाए। कमिश्नर शुएब इकबाल सैयद की जन्म से सड़क के इतराफ में ग्रीन बेड्स में घास और पौधे लगाने की हिदायत भी जारी की गयी और लाइटिंग का भी मुनासिब बंदोबस्त करने का कहा गया। कमिश्नर साहिवाल ने स्टेडियम में तरक्याती कामों की चेकिंग भी की। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर मोहम्मद इशफाक ने बताया कि जिनाह क्रिकेट स्टेडियम में निजी कंपनी के माहिरीन की जेर निगरानी फ्लड लाइट्स लगाने के लिए काम का आगाज कर दिया गया है, जिसको जल्द पाया तकमील तक पहुंचाया जाएगा। इसके अलावा जिम्नेजियम में बेहतरीन सहूलियत की फराहमी के लिए इकदाम किए।
हेल्थ डिपार्टमेंट और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट डिस्ट्रिक्ट खुशाब का एक और आवाम के लिए अच्छा इकदाम सामने आया है। डिसेबल्ड असिस्टमेंट बोर्ड तहसील नूरपुर थल का माहाना इजलास का इनेकाद किया गया है। एक अरसे से तवातुर से जारी है। अवामी समाजी हलकों की तरफ से अरबाब इख्तियार को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया गया है। रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे राजा नूर इलाही आतिफ। डिसेबल असेसमेंट बोर्ड तहसील नूरपुर थाल का माहाना इजलास मेडिकल सुपरिटेंडेंट THQ अस्पताल नूरपुर थाल सर्जन डॉक्टर अमीर उमर की जेर सदारत मुनक्किद हुआ, जिसमें बोर्ड मेंबरान सोशल वेलफेयर ऑफिसर समीना राजा, डॉक्टर सैमा बशीर जमन, डॉक्टर कलीम गुरमानी और डॉक्टर शाहिद ने शिरकत की। दौरान इजलास मजमूई तौर पर 30 दरखास्तों पर जरूरी कार्रवाई अमल में लाई गई, जिनमें से 14 अफराद को डिसेबल करार दिया गया, एक नॉन डिसेबल जबकि 3 को रेफर किया गया और 3 दरखास्त गुजारान गैर हाजिर करार पाए। दरअसल अवामी समाजी हलकों ने एक अरसा से तवातर से जारी डिसेबल बोर्ड नूरपुर थाल के माहाना इजलास के नकाद को हुकाम बाला की तरफ से अवाम दोस्त इकदाम करार देते हुए मुतल्लिका अरबाब वस्तु कुशाद का शुक्रिया अदा किया है, क्योंकि इन इकदाम से दूर दराज इलाकों के वासियों और खसूसन माजूर अफराद को मकामी सतह पर रिलीफ मिल रहा है। इंटरबैंक में आज कारोबार के आगाज में ही डॉलर मजीद सस्ता हुआ है। इंटरबैंक में डॉलर 8 पैसे सस्ता होने के बाद 279 रुपये 90 पैसे का हो गया है। गुज़श्ता रोज कारोबार के अख्ताम पर इंटरबैंक में डॉलर 279 रुपये 98 पैसे का हुआ था। मुल्क में सोने की फी तोला कीमत में 1300 रुपये कमी का इजाफा बरकरार है। मुल्क में सोने की फी तोला कीमत 2,15,000 रुपये हो चुकी है। आलमी बाजार में सोने का भाव $13 इजाफे से $1,025 फी औंस बताया जा रहा है। स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए पल न्यूज़।